Satellite launch vehicle is a rocket that can be controlled and directed by a system and used for constructive purpose, means to establish a satellite in its orbit, and are of three types: ASLV, augmented satellite launch vehicle, PSLV, polar satellite launch vehicle, GSLV, geostationary satellite launch vehicle। जियो स्टेशनरी इसकी जगह जियो सिंक्रोनस भी हो सकता है। अब ये क्या है, यहां आपको बताएंगे। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दीज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस of the orbit of a satellite. What is satellite? Satellite defined a body that moves around हम अर्थ के रेस्पेक्ट में लेकर के चल रहे हैं, अराउंड द अर्थ इन ए डेफिनिट ऑर्बिट with the minimum speed of 8 किलोमीटर पर सेकेंड at minimum height from sea level. So this is the definition of satellite. So satellite defined as a body that moves in a definite orbit around the earth with the minimum speed of 8 km per second at the minimum height from mean sea level. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन ऑन अर्थ, remote sensing, to observe flood, crop area, barren land, forest covered area, navigation, for cartography, mapping, etc. These are the main function of
these are the main objectives of a satellite. And satellite categorized into three groups: augmented satellite, polar satellite, and geostationary satellite. ऑगमेंटेड सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट को हमने डिफाइन किया था, सैटेलाइट इज ए बॉडी दैट मूव्स इन ए डेफिनिट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. दिस इज अर्थ. दिस इज एन इमेजिनरी लाइन और of earth globe, that is equator or 0 degree latitude. This is north pole and this is south pole. If the orbit of a satellite is located in between pole or equator, this one or this one, this orbit is augmented orbit, and satellite will be called augmented satellite. And the satellite launch vehicle that establish augmented satellite in augmented orbit will be called augmented satellite launch vehicle. और ये अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी नहीं होते हैं, क्योंकि इनके घूमने का डायरेक्शन अर्थ के घूमने के डायरेक्शन से डिफरेंट होता है और इनकी स्पीड भी डिफरेंट होती है. सेकंड, पोलर सैटेलाइट. दिस इज अर्थ, ये इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. इफ द ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट इज located pole to pole, this one, this satellite will be polar satellite and orbit will be polar orbit. जिनकी ऑर्बिट पोल टू पोल हो और इस ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करने वाले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहेंगे. अब यहां पर ये ऑर्बिट दो तरह की हो जाती है. कि ये अर्थ एंड दिस इज सन. If the orbit of a polar satellite located in such a manner that sometimes satellites come into shadow of earth, अगर ये तो ये शैडो एरिया हो गया इसका, तो ये कुछ समय के लिए यहां शैडो में आ जाता है.
तब इसको हम जनरल पोलर ऑर्बिट कहेंगे। और अगर ये कुछ इस तरह से ऑर्बिट हो कि सनरेज हमेशा इस सैटेलाइट पर रहे, तो यही कहलाएगा जियो सिंक्रोनस सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। और जनरली कॉल्ड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्या है? when the orbit of a satellite in which satellite always remains in front of sun or to receive sun rays is sun synchronous polar orbit। इसमें कुछ समय के लिए ये सनलाइट से अलग हो जाता है, शैडो आ जाती है इसमें अर्थ की, लेकिन इसमें शैडो नहीं आती है। तो दिस इज सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, मींस पोल टू पोल, बट सैटेलाइट रिमेन्स ऑलवेज इन दिस ऑर्बिट टू रिसीव सनलाइट इन फ्रंट ऑफ सन। थर्ड इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। This is Earth, North Pole, South Pole, this is equator. Earth moves on its axis west to east, ये इस तरह से मूव कर रही है। अगर इस सैटेलाइट की ऑर्बिट इक्वेटर के ठीक ऊपर हो, दिस वन, orbit on equator and the orbital velocity of a satellite should be equal to axial velocity of the earth। orbital velocity of satellite is equal with axial velocity of earth। and the direction is same, then this satellite will appear stationary with earth, hence called geostationary satellite, and this orbit will be called geostationary orbit। और इनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए। बट दिस इज नॉट ए इसेंशियल फैक्टर टू जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, ये इससे कम भी हो सकती है, फिर भी वो जियोस्टेशनरी कहलाएंगे।
तो जियो स्टेशनरी होने के लिए ऑर्बिट शुड बी ऑन इक्वेटर. Orbital velocity of a satellite should be equal with axial velocity of a earth, and direction should be same. अब इसी में आ जाते हैं जियो सिंक्रोनस. व्हाट इज जियो सिंक्रोनस? When the orbit of a satellite is with any angle with equator, this is equator. अगर इसी इक्वेटर के साथ ये किसी भी एंगल पर आ जाती है, सपोज ये इस एंगल पर आ गई या इस एंगल पर आ गई, तो दिस इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. At any angle with equator. और इससे पहले वाली क्या थी? ये था दिस वन जियो स्टेशनरी. दिस इज जियो स्टेशनरी. तो जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, ऑगमेंटेड ऑर्बिट. एंड नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्बिट on the basis of height. NEO, near earth orbit. LEO, low earth orbit. NEO, medium earth orbit. HEO, HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट. क्या है ये? हाइट ऑफ नियर अर्थ ऑर्बिट इज 100 to 600 किलोमीटर. 100 किलोमीटर टू 600 किलोमीटर is the height of न्यू अर्थ ऑर्बिट. और इसी अर्थ ऑर्बिट में इस्टेब्लिश किए जाते हैं स्पेस स्टेशन. ध्यान रखिएगा किस ऑर्बिट में क्या होता है. स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश्ड इन नियर अर्थ ऑर्बिट दैट इज 100 किलोमीटर टू 600 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल. जैसे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डेवलप्ड बाई रशिया, USA. Second is low earth orbit. Its height from 600 kilometer to 2000 kilometer. The height of low earth orbit is 600 kilometer to
2000 किलोमीटर। और इसी में इस्टेब्लिश किए जाते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स established in low earth orbit, that's height from 600 kilometer to 2000 kilometer. Third, medium earth orbit, its height from 2000 kilometer to 35,000 किलोमीटर। और इसमें इस्टेब्लिश किए जाते हैं नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट इस्टेब्लिश्ड इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाइट फ्रॉम 2000 किलोमीटर टू 35,000 किलोमीटर, एंड द हाइट ऑफ हाई अर्थ ऑर्बिट मोर देन 35,000 किलोमीटर। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसी ऑर्बिट में इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नियर अर्थ ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन, लो अर्थ ऑर्बिट में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में नेविगेशन सैटेलाइट, हाई अर्थ ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट इस्टेब्लिश किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट on the basis of its central body। सेंटर में कौन है इनके? अगर सेंटर में अर्थ है तो ये जियोसेंट्रिक ऑर्बिट कहलाएगी। When Earth is in center, और ये कब पॉसिबल है? कि जब सन सेंटर में हो, सॉरी अर्थ सेंटर में हो और मून इसके चारों ओर हो। दिस इज अर्थ and this is moon। So this orbit will be geocentric when earth is in center। तो orbit in which moon moves around the sun is geocentric orbit। Second, heliocentric orbit। Helio means star or sun, when sun is in center। ये कब पॉसिबल है? This is sun and this is the orbit in which earth moves। This is earth। When earth moves around the sun in this orbit is called heliocentric orbit, when sun is in center। And third is galactocentric orbit।
when galaxy is in center, ये एक गैलेक्सी है, इसके चारों ओर दूसरी गैलेक्सी मूव कर रही है, दिस इज गैलेक्सी। तो एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी का चक्कर लगा रही है, तो जब मून अर्थ का चक्कर लगाए जिस ऑर्बिट में, वो जियोसेंट्रिक, जब अर्थ सन का चक्कर लगाए सन सेंटर में हो, हेलियोसेंट्रिक, और जब सोलर सिस्टम या गैलेक्सी के चारों ओर कोई दूसरी गैलेक्सी या सोलर सिस्टम चक्कर लगाए, दैट इज कॉल्ड गैलेक्टोसेंट्रिक। एंड नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट on the basis of its shape. This is a central body। अगर कोई दूसरी बॉडी इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, when a body moves around another body in a circular path, so this orbit will be called circular orbit, like this। Second, when a body moves around another body in a elliptical orbit, like this। This is elliptical orbit। And third, when a body moves around another body in long elliptical orbit, it's called long elliptical orbit। This is circular orbit, elliptical orbit, and this is long elliptical orbit। अब यहीं पर एक चीज और समझ लीजिए, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। ऑर्बिट को हमने डिफाइन किया था, ए डेफिनिट पाथ ऑफ ए बॉडी अराउंड एनी अनदर बॉडी इज ऑर्बिट। और ऑर्बिट को हमने हाइट के अकॉर्डिंगली 4 बार पर डिवाइड किया था, नियो, लियो, मियो एंड हियो। दिस इज अर्थ and this is Leo, low earth orbit, and this is high earth orbit। हाई अर्थ ऑर्बिट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है और हमारे पास उस तरह के रॉकेट नहीं थे कि हम डायरेक्टली इसको हाई अर्थ ऑर्बिट में और सैटेलाइट को इस्टेब्लिश कर दें। पहले हम लो अर्थ ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करते हैं और इसके बाद फिर हम हाई अर्थ ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करते हैं। जब ये सैटेलाइट
ये इस तरह से मूव करता हुआ ये यहां पर इस्टेब्लिश करा दिया जाता है, और फिर जब ये मूव करता हुआ यहां आता है तो इसी में अपथ्रस्ट फोर्स डेवलप करा करके ये हाई अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दिस ऑर्बिट विल बी कॉल्ड जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, मीन्स a long elliptical orbit used to transfer a satellite from low earth orbit to हाई अर्थ ऑर्बिट। इसमें कोई सैटेलाइट रहता नहीं है, बल्कि ये केवल कुछ देर के लिए डेवलप कराई जाती है और फिर इसको हाई अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट इज लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट यूज्ड टू ट्रांसफर ए सैटेलाइट फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट टू हाई अर्थ ऑर्बिट। Now, types of satellites basis on the weight. Pico satellite, नैनो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट, मीडियम सैटेलाइट, and heavy satellite. On the basis of weight, satellite categorized into 6 groups. Pico satellite, its weight is less than 1 kilogram. Is pico satellite. If the weight of a satellite is 1 to 10 kilogram, it will be nano satellite. If the weight of a satellite is 10 to 15 kilogram, is microsatellite. If the weight of a satellite is 15 to 150 kilogram, it will be a small satellite. If the weight of a satellite is 150 to 1500 kilogram, it will be medium satellite, and the weight of a satellite is more than 1500 kilogram, it will be called heavy satellite. तो आप बहुत नाम सुनते होंगे, इसरो ने नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए कि पीको सैटेलाइट लॉन्च की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैनो और पीको और माइक्रो और स्मॉल और हैवी सैटेलाइट? जब इसका वेट 1 किलोग्राम से कम हो, पीको 1 to 10 किलोग्राम हो, नैनो 10 to 15 किलोग्राम हो, माइक्रो 15 to 150 किलोग्राम हो, मीडियम
small, and 150 to 1500 kilogram medium, and more than 1500 kilogram is heavy satellite. And now types of satellites. Basis of their objectives. Remote sensing satellite. Navigation satellite. And communication satellite. अब ये क्या है? What is remote sensing? रिमोट का सीधा सा मतलब होता है फ्रॉम डिस्टेंस। तो जब हम किसी भी बॉडी या सरफेस की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हम बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए जब हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग इज द इक्वेशन टू detect the properties of any object or a surface without any physical contact from distance is remote sensing, and satellite to use for this purpose will be called remote sensing satellite. तो remote sensing क्या है? Remote sensing to detect or to know the properties of a body or a surface from distance without any physical contact. By the use of light rays or microwaves. लाइट रेज या माइक्रोवेव्स की हेल्प से जब हम किसी भी बॉडी या सरफेस की प्रॉपर्टीज को डिस्टेंस से बिना फिजिकल कांटेक्ट के जानते हैं, तब इसी को हम रिमोट सेंसिंग कह देते हैं। तो रिमोट सेंसिंग टू डिटेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी बॉडी और ए सरफेस फ्रॉम डिस्टेंस विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट by the use of light rays and microwaves is remote sensing. And this remote sensing is of two types. One is active and second is passive. अगर ये सैटेलाइट हैं तो ये फिर दो तरह के हो जाएंगे, एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट।
तो रडार भी इसी तरह से दो तरह के हो जाते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैव ओन सोर्स ऑफ waves and work in all climatic condition. Day and night time, हर समय काम करते हैं ये, हर क्लाइमेटिक कंडीशन में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रीसेट, मेगाट्रॉपिक, सरल, all these are active remote sensing satellite of India. Second is passive remote sensing satellite, have no source of waves light. It detect any object or surface or body by the use of light rays. ये क्लाउडी वेदर में काम नहीं करता, नाइट में काम नहीं करता। इट वर्क ओनली इन क्लियर वेदर and in daytime only. इनके एग्जाम्पल कार्टोसेट, रिसोर्स सेट, ओशन सेट, all these are passive remote sensing satellite of India. Next, navigation satellite, what is the meaning of navigation? Navigation means traffic, to detect the position of a body on the earth. And this type of navigation satellite established in medium earth orbit, like इंडिया का IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, also known as NAVIC, navigation of India's constellation.
इंडियन कॉन्स्टिलेशन। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोनास ऑफ रशिया। जीपीएस इज ऑफ यूएसए। हम जो लोग जीपीएस यूज करते हैं यूपीएस यूएसए का है। रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम ऑफ इंडिया इज IRNSS, and this positioning system is of two type. चाहे वो जीपीएस हो या फिर IRNSS हो। वन इज encrypted और restricted positioning system used only for military purpose. Second is standard positioning system used by पब्लिक पर्पस के लिए होता है। ये हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज नॉट ए जीपीएस, इज ए पार्ट ऑफ जीपीएस, दैट इज कॉल्ड एसपीएस, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम। हमारा अपना भी जीपीएस होगा, दिस इज IRNSS, जो रीजनल लेवल पर होगा। इंडिया की बाउंड्री वॉल से 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस तक के एरिया में हमारी पोजीशन को बताएगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। Communication satellite used for communication like TV, internet, mobile service, at global level. This is earth surface. अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस पर हैं, सपोज ये हम हैं और यहां पर कोई हमारा साथी है, अब इनके बीच में अगर बात हो रही है तो हम डायरेक्टली बात कर लेंगे, किसी बीच में मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होती है तो हम वॉकी टॉकी का यूज कर लेते हैं। जैसे आप ट्रेन में देखते हैं, ट्रेन ड्राइवर और गार्ड के बीच में एक एपरेटस होता है जिसको हम वॉकी टॉकी कहते हैं, वो आपस में ही बातें कर लेते हैं शॉर्ट डिस्टेंस पर। और अगर ये बहुत दूर है तब हम वॉकी टॉकी भी यूज नहीं कर पाते हैं, तब बीच में हम एक लेकर के आते हैं सैटेलाइट।
this is transmitter that emits microwaves and reflected by सैटेलाइट, और इसको फिर रिसीव कर लिया जाता है यहां इस अर्थ पर, और इसी को डिकोड करके ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें इन माइक्रोवेव्स को रिसीव करने के लिए these are the solar panels. इन माइक्रोवेव्स को रिसीव करने के लिए इसमें होते हैं ट्रांसपोंडर। मीन्स ट्रांसमीटर प्लस रेस्पॉन्डर। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स माइक्रोवेव्स एंड रेस्पॉन्डर रिसीव्स माइक्रोवेव्स। यहां से हम कोई इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, ये इसको रिसीव करके ट्रांसफर कर देता है। अब पूरी की पूरी अर्थ पर कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए यहां हम यूज करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिनकी हाइट 36,000 किलोमीटर रखी जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों रखी जाती है, इसका भी एक रीजन है। सपोज हमारे पास ये एक कैमरा है, और इस कैमरे से अगर हम आपकी फोटो लेना चाहें क्लोजअप, तो हम इसको बहुत आपके पास में रखेंगे, और जैसे जैसे इस कैमरे को हम दूर करते जाएंगे वैसे वैसे कैमरे के द्वारा कवर होने वाला एरिया बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से यहां होता है, एरिया बढ़ता चला जाएगा। एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर approximately, this satellite will cover the maximum area of Earth, that is the 1/3 of Earth. कब? When the height of this satellite will be 36,000 kilometer. When a geostationary satellite at the height of 36,000 kilometer from the sea surface, it covers 1/3 area of the Earth. So how many geostationary satellite will cover the whole Earth surface area? भाई सीधी सी बात है, एक करेगा 1/3 को, तो पूरी अर्थ को कवर करने के लिए हमें 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए। This is geostationary satellite first. This is geostationary satellite second, and this is geostationary satellite third, and this is geostationary orbit. When 3 geostationary satellites established in a geostationary orbit with equal distance means distance in between satellite to satellite, this one, at the height of 36,000 kilometer from sea level, then communication will be established at global level. और इस समय यही हो रहा है।
कि हम यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन अपलिंक करते हैं, अपलोड करते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देगा अर्थ पर। इसके अलावा ये इस सैटेलाइट को भी रिफ्लेक्ट कर देगा। ये वाला सैटेलाइट यहां इस एरिया को कवर करके इधर कवर ट्रांसफर कर देगा, ये सैटेलाइट इस एरिया को कवर करके इसको कवर करेगा, तो पूरी अर्थ पर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन 36,000 किलोमीटर की हाइट पर हो यह कोई जरूरी नहीं है। इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम कम करेंगे तो कवर्ड एरिया भी कम हो जाएगा, और जब कवर्ड एरिया कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को आप बढ़ा दीजिए। दिस इज अर्थ, हाइट को हमने कम कर दिया, एक यहां कर दिया स्टेब्लिश, एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, और भी कर दीजिए। ये इधर को ट्रांसफर कर देगा, ये इसको ट्रांसफर कर देगा, ये इसको ट्रांसफर कर देगा, ये इसे ट्रांसफर कर देगा, ये इसे। और जब हम हाइट कम कर देंगे तो इसमें जो इसकी रेजोल्यूशन पावर है वो रेजोल्यूशन पावर बढ़ जाएगी। पहले क्या था, रेजोल्यूशन पावर कम हो जा रही थी, यानी हाइट पर अगर हम रखते हैं कैमरे को तो रेजोल्यूशन पावर यानी डिफरेंशिएशन पावर जो है वो कम हो जाएगी। लो हाइट पर रखेंगे तो डिफरेंशिएशन पावर बढ़ जाएगी। अब इन्हीं सैटेलाइट को डेवलप करना, डिजाइन करना, लॉन्च करना, यह सब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। अब जैसे जैसे ये डेवलप होता जा रहा है वैसे वैसे ये सोर्स ऑफ इनकम भी होता जा रहा है। नाउ इसरो डेवलप्ड इट्स 2 कॉमर्शियल यूनिट। One is Antrix Corporation Limited, established in 1992 to promote technology, services of ISRO, and second is ANSIL, New Space India Limited, established in 2019 to promote public sector for स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च। ध्यान रखिएगा दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में अंतर है। एंट्रिक्स का काम है कि इसरो की टेक्नोलॉजी को, उसकी सर्विसेज को प्रमोट करना और ऐसे कंट्रीज से कांटेक्ट करना जिनके पास अपना सैटेलाइट तो उन्होंने डेवलप कर लिया लेकिन उनके पास अपना कोई लॉन्च व्हीकल नहीं है। एंसिल ये इंडिया के ही पब्लिक सेक्टर को, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको प्रमोट करना कि आप स्पेस में इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्पेस में रिसर्च में,
और इसकी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो रिसेंटली टाटा स्काई इस पर काम कर रहा है, यानी आने वाले समय में जैसे अमेरिका में होता है वहां पर कोई भी कैपिटलिस्ट अपना इन्वेस्टमेंट स्पेस रिसर्च के लिए कर सकता है, तो वैसा अब इंडिया में भी होगा। एंड दिस स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन established in 1969. Antrix Corporation of Limited and New Space India Limited both are the commercial units of ISRO. Its headquarters is in Bengaluru. क्लियर? ऑर्बिट क्या है, सैटेलाइट क्या है, नेविगेशन क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है, क्लियर?